کی قلت دامنگیر ہے. آئیے بغیر کسی تمہید کے تجربات کی دنیا میں جو سینے کے بل چلے اور تواریخ کے تمام اوراق کو آپ کے دل کے میز پہ سجا دے اور اپنے جملوں کو بیساکھیوں کا سہارا لے کر کے ایک زمانے کی تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور آپ کے دل کے قریب کر لیں. ان تمام تر جملوں کو اکٹھا کریں تو ایک تصویر وجود میں آتی ہے. اس تصویر کو شہنشاہ خطابت رئیس الخطبہ حضرت علامہ و مولانا مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ کے نام سے موصوف ہے. حضرت کی آمد ہو رہی ہے. ذرا محبت کے ساتھ ایک شخص اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور نعروں سے استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرکار مدینہ کانفرنس، جشن دستار حفاظ کرام، مدرسہ مدینۃ العلوم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آ رہے ہیں محبت کا شہر بسانے کے لیے، پیار کی ایک نئی تحریک چلانے کے لیے. آندھیاں شور کرے یا ہو اندھیرے ناراض، حضرت تو نکلے ہیں چراغے اسلام جلانے. صدق اللہ العلی العظیم. سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت، نبی مقدم رسول ذی محتشم صاحب ارب و عجم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پورا مجمع بواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا. استاذ العلماء جلالت العلم حضرت علامہ کلیم اللہ صاحب کلیم الدین صاحب قبلہ شمسی دامت برکاتہ العالیہ و قدسیہ کی محبتوں کی زنجیر میں قید ہو کر فقیر آپ کا یہ محبوب ادارہ مدرسہ مدینۃ العلوم، جس کے جلسہ دستار بندی میں بھی حاضر آیا اور آپ بھی حاضر آئے. الحمدللہ ان سال 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں یہ 7 بچے کل تک صرف مقتدی تھے، اب ہماری قوم کے آج کے بعد امام ہو گئے. ڈاکٹر اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا اور میں وہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. سماج میں عزت سب کو چاہیے، وقار سب کو چاہیے. سب چاہتے ہیں کہ زمانہ اس کی عزت کرے، لوگ اس کا رسپیکٹ کریں، عزت کی نگاہ سے دیکھیں. مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو. مگر سوال یہ اٹھتا ہے عزت ملے گی کیسے؟ عزت کی راہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اوتوا العلم درجات، علم حاصل کرو خدا تیرے رتبے کو بڑھا دے. تعلیم یافتہ بن جاؤ خدا تیرے رتبے کو بڑھا دے گا. ایجوکیٹڈ بن جاؤ اللہ تیرے رتبے کو بڑھا دے گا. یہی وجہ ہے سماج میں ہر انسان اپنے علم اور اپنی صلاحیت کے اعتبار سے عزت پاتا ہے. ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق،
इंजीनियर अपने इल्म के मुताबिक, प्रोफेसर अपने इल्म के मुताबिक, साइंटिस्ट अपने इल्म के मुताबिक, मास्टर अपने इल्म के मुताबिक, हाफिज कुरान अपने इल्म के मुताबिक, कारी खुशिलहान अपने इल्म के मुताबिक, आलिम दीन अपने इल्म के मुताबिक, मुफ्तियान एज़ाम अपने इल्म के मुताबिक, हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है। ऐसा नहीं होता जहाँ पर एमए पास की जरूरत हो वहाँ बीए पास को रख लिया जाए, जहाँ बीए पास की जरूरत हो वहाँ इंटर पास को रख लिया जाए, जहाँ इंटर पास की जरूरत हो वहाँ मैट्रिक पास को रख लिया जाए। ऐसा नहीं होता जहाँ मुफ्ती की जरूरत हो वहाँ आलिम को बहाल कर दिया जाए, जहाँ आलिम की जरूरत हो वहाँ हाफिज कुरान को रख दिया जाए। हर इंसान अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाता है, समाज में उसे इज्जत मिलती है। ऐसा नहीं है कि समाज में इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर की इज्जत नहीं, साहब वो भी अपने इल्म के मुताबिक इज्जत पाते हैं। मगर आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि डॉक्टर इंजीनियर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाए, इंजीनियर प्रोफेसर के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाए, मैट्रिक पास इंटर वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाए, इंटर पास बीए वाले के पीछे हाथ बांध कर खड़ा हो जाए। मगर जब हमारी कौम का कोई शहजादा मदरसा मदीनतुल उलूम में कुरान अजीम हिफ्ज करता है और उसे सीने में महफूज करता है और सर पे दस्तार बांधकर जब अपनी बस्ती को वापस पलटता है और मुसल्ले इमामत पे खड़ा होता है, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर, क्या प्रोफेसर, सारा जमाना उस हाफिज कुरान के पीछे हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या प्रधान, सारा जमाना हाथ बांध करके खड़ा है। साहब आप सोचेंगे, ताज्जुब करेंगे, किसी ने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप समाज के इतने पढ़े लिखे और महान व्यक्ति हैं, आपकी एक अपनी पर्सनालिटी है, आपकी अपनी एक अलग पहचान है, मगर क्या वजह है आपको मैं देखता हूँ हाफिज साहब के पीछे हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। जब मस्जिद के इमाम साहब आते हैं तो आप अपने चैम्बर में कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाते हैं। क्या आपसे वो इज्जत में बड़े हैं? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ वो हमसे इज्जत में बड़े हैं। कहा उम्र तो बड़ी छोटी है, अभी तो ताजा ताजा मदरसा मदीनतुल उलूम से पढ़ कर आए हैं, आप उनसे उम्र में बड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, मगर एक हाफिज कुरान के लिए आप खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने कहा मीडिया वाले हैं, पहले चाय पीजिए, चाय पी करके दिमाग को ठीक ठाक कीजिए, फिर यहाँ पर बगल में मेरे पास बैठिए। डॉक्टर साहब ने कहा ये बताइए, मैं समाज का पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नर्सरी से लेकर डॉक्टर तक की किताबों का मैंने मुताला किया, पढ़ा, अध्ययन किया, डॉक्टर बना, मगर ईमानदारी से बताएं मैं डॉक्टर बना हूँ मगर मैं दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर डॉक्टर बना हूँ। हमारा भाई इंजीनियर बना है, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर इंजीनियर बना है। हमारी बस्ती का कोई शख्स अगर साइंटिस्ट बना है, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर साइंटिस्ट बना है। मगर हमारी मस्जिद में जो इमाम साहब आए हैं वो दुनिया के इंसानों की लिखी हुई किताबों को पढ़कर हाफिज कुरान नहीं बने, बल्कि अल्लाह की नाज़िल करदा किताब कुरान अजीम को याद करके हाफिज कुरान बने हैं। हमारी मस्जिद के इमाम साहब कुरान अजीम के इल्म को हासिल करके और हदीस मुस्तफा के इल्म को हासिल करके इमाम बने हैं। अरे मियां, हाफिज साहब की जो मैं इज्जत करता हूँ वो मुझसे जो इज्जत में बड़े हैं वो पर्सनालिटी की वजह से बड़े नहीं है, वो खूबसूरती की वजह से बड़े नहीं है, वो दौलत की वजह से बड़े नहीं है, वो खानदान की वजह से बड़े नहीं है, वो उम्र की वजह से बड़े नहीं है, बल्कि कुरान की तालीम ने उनके रुतबे को मुझसे बढ़ा दिया है। हदीस मुस्तफा की तालीम ने उनके रुतबे को मुझसे बढ़ा दिया है। अरे मियां नहीं पता, दुनिया की सारी किताबें मिलकर कुरान का मुकाबला नहीं कर सकती और सारे इल्म वाले मिलकर आलिम कुरान और आलिम हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़ किराम, नारे तकबीर। अच्छा साहब है, जितने इल्म के शोबे उतनी अलग अलग सब्जेक्ट, उतनी अलग अलग किताबें। आपने देखा होगा डॉक्टर के लिए अलग किताबें, इंजीनियर के लिए अलग किताबें, प्रोफेसर के लिए अलग किताबें, बीएड के लिए अलग किताबें, एमएड के लिए अलग किताबें, डीएलएड के लिए अलग किताबें, मैट्रिक के लिए अलग किताबें, साइंस के लिए अलग किताबें, ज्योग्राफी पढ़ने वालों के लिए अलग किताबें,
कॉमर्स पढ़ने वालों के लिए अलग किताबें, ऐसा नहीं होता। साहब के मैट्रिक का बच्चा भी वही किताब पढ़े, इंटर का बच्चा भी वही किताब पढ़े, नहीं, उनके सबके लिए किताबें अलग अलग है, सिलेबस अलग अलग है। ऐसा नहीं होता मैट्रिक का बच्चा जो किताबें पढ़ता है, इंटर का बच्चा उन किताबों को नहीं पढ़ता, इंटर का बच्चा जो पढ़ता है, बीए का बच्चा उन किताबों को नहीं पढ़ता। साहब याद रखिएगा, डॉक्टर जिन किताबों को पढ़ता है, इंजीनियर उन किताबों को नहीं पढ़ता। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मदरसे के बच्चे जिन किताबों को पढ़ते हैं, स्कूल के बच्चे उन किताबों को नहीं पढ़ते। लेकिन आइए दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए, मैट्रिक में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, इंटर में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, बीए में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, वक्त के साइंटिस्ट भी उसे पढ़ते हो, वक्त के डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर भी उसे पढ़ते हो, औरत भी पढ़ती हो, मर्द भी पढ़ता हो, बीवी भी पढ़ती हो, शौहर भी पढ़ता हो, माँ भी पढ़ती हो, बाप भी पढ़ता हो, बच्चे भी पढ़ते हो, बूढ़े भी पढ़ते हो, इमाम भी पढ़ता हो, मुक्तदी भी पढ़ता हो, पीर भी पढ़ता हो, मुरीद भी पढ़ता हो, आलिम भी पढ़ता हो, हाफिज भी पढ़ता हो। दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए, स्कूल में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो, मदरसे में पढ़ने वाला भी उसे पढ़ता हो। आपकी जबान पर एक ही नाम आएगा, हामिया। दुनिया में ऐसी कोई किताब इंग्लिश में मौजूद नहीं है, उर्दू में मौजूद नहीं है, हिंदी में मौजूद नहीं है, साहब मैथमेटिक्स में मौजूद नहीं है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मौजूद नहीं है। मैंने कहा कोई ऐसी किताब ले आइए, किताब एक हो, पढ़ने वाले सब हो। आप कहेंगे मौलाना वैसी किताब दुनिया में सिर्फ एक है, और उस किताब को कुरान अज़ीज़ कहा जाता है, उस किताब को कुरान मुक़द्दस कहा जाता है। साहब वो कुरान है। मैट्रिक का बच्चा भी कुरान पढ़ रहा है, इंटर में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, बीए में पढ़ने वाला भी कुरान पढ़ रहा है, साइंटिस्ट भी कुरान पढ़ रहे हैं, बीवी भी कुरान पढ़ रही है, शौहर भी कुरान पढ़ रहा है, पीर भी कुरान पढ़ रहा है, मुरीद भी कुरान पढ़ रहा है, इमाम भी कुरान पढ़ रहा है, मुक्तदी भी कुरान पढ़ रहा है। साहब कुरान तो सब पढ़ रहे हैं। मैंने कहा प्रोफेसर साहब आप कुरान क्यों पढ़ते हैं? कहा मौलाना साहब मैं कुरान पढ़ता हूँ मगर मेरा मकसद अलग है। मैंने कहा आपका मकसद क्या है? साहब दुनिया में कोई ऐसी भी किताब है, किताब एक हो और मकसद सबकी पूरी हो जाए, किताब एक हो, हर इंसान अपने अपने मकसद के लिए पढ़े। जाहिर सी बात है जो किताबें डॉक्टर के लिए लिखी गई है उसे जो भी पढ़ेगा उसका मकसद सिर्फ एक होगा, डॉक्टर बनना। जो किताबें इंजीनियर के लिए लिखी गई है उसका मकसद सिर्फ एक होगा, इंजीनियर बनना। मगर वाह रे कुरान तेरा जवाब नहीं है, पढ़ने वाले अनेक हैं, सबका मकसद अलग अलग है। मैंने कहा साइंटिस्ट तो तुम कुरान क्यों पढ़ते हो? साइंटिस्ट कहते हैं मौलाना ये कुरान नहीं होता तो रिसर्च का दरवाजा कौन खोलता? ये कुरान ही तो है जिसने सबसे पहले इंसान की पैदाइश पे खिताब किया, रिसर्च का दरवाजा खोला और कहा खोले कम ईमान दाफी यखरुजु बैन सुल्बे व तराइब। हमने इंसान को उछलते हुए पानी से पैदा किया है। ये पानी औरत के मर्द के रीढ़ की हड्डी से और औरत के सीने के दरमियान से निकलता है। मौलाना ये कुरान ही तो है जिसने इंसान की खूबसूरती का जिक्र किया और कहा खलकल इंसान फी अहसनि तक़वीम। हमने इंसान को कायनात में सबसे ज्यादा खूबसूरत, हैंडसम और ब्यूटीफुल बनाया है। यानी इंसान से अच्छा हमने किसी को नहीं बनाया है। खलका आदम अला सूरतिही, हमने आदम को अपनी सूरत पे बनाया है। यही कुरान तो है जिसने इंसान की जिंदगी को चैलेंज किया और कहा ए इंसान तकब्बुर न करना, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। हमने तुझे इसी मिट्टी से बनाया है, इसी मिट्टी में डालेंगे और इसी मिट्टी से निकाल कर तुझे मैदान महशर में हाजिर करेंगे। मौलाना ये कुरान है, कुरान जो हमें रिसर्च का दरवाजा खोलता है, जो हमें बताता है, जमाने को दर्से वफा देता है। अल्लाह अकबर। मैंने देखा डॉक्टर साहब अपनी डिस्पेंसरी में दाखिल हुए, मरीजों की कतार लगी हुई है, मरीज सब बांधे खड़े हैं। डॉक्टर साहब ने अपने कंपाउंडर से कहा मेरे कंपाउंडर जरा सा ठहर जाना, अभी मरीजों को आने ना देना, जरा 10 मिनट मुझे कुरान पढ़ लेने दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब खैरियत, आप कुरान पढ़ रहे हैं? कहा हाँ मौलाना मैं डॉक्टर जरूर हूँ, दवाइयाँ लिखता हूँ, मगर मेरा और तेरा रब कुरान में कहता है हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। ये कुरान ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। इसलिए मैं मरीजों को दवा करने से पहले, उन्हें दवा
दवाइयाँ लिखने से पहले कुरान की तिलावत कर लेता हूँ ताकि दवाइयाँ लिखता जाऊँ और तिलावत की बरकत से हर मरीज शिफा पाता चला जाए। मैंने देखा साहब कुरान वही है, एक बूढ़ी माँ घर के अंदर चश्मा ऊपर नीचे करके कुरान की तिलावत कर रही है। मैंने कहा अम्मा जी आप इस बुढ़ापे में कुरान पढ़ रही है? कहा हाँ मौलाना ये मेरा घर है, इसमें मेरी बहू रहती है, मेरे पोते पोती रहते हैं, मेरा बेटा रहता है। मैंने सुना है जिस घर में कुरान की तिलावत होती है उस घर से शैतान भाग जाता है, उस घर से नहुसत खत्म हो जाती है, उस घर में खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। कुरान की तिलावत से घर पुरनूर हो जाता है, कुरान की तिलावत की बरकत से आंखों को नूर मिलता है, कुरान की तिलावत की बरकत से घर में खुशहाली आती है। इसलिए मैं कुरान की तिलावत करती हूँ ताकि बेटे के लिए दुआ मकबूल हो जाए, बच्चे हमारे खुशहाल रहे, हमारा घर रहमत का गहवारा बन जाए। कुरान एक है, डॉक्टर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, इंजीनियर अपने मकसद के लिए पढ़ रहा है, बूढ़ी माँ अपने मकसद के लिए पढ़ रही है। मैंने देखा शाबान का महीना है, हाफिज कुरान मस्जिद में बैठकर सुबह शाम कुरान पढ़ रहे हैं। हुजूर हाफिज साहब खैरियत से बहुत कुरान पढ़ रहे हैं। कहा मौलाना रमजान शर पर है, तरावी की नमाज पढ़ानी है और कुरान की तिलावत करनी है इसलिए कुरान पढ़ रहा हूँ। मैंने देखा अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं, कभी कंजुल ईमान पढ़ रहे हैं, कभी तफसीर पढ़ रहे हैं। हुजूर खैरियत के? कहा मौलाना कुरान पढ़ता हूँ, कंजुल ईमान पढ़ता हूँ, लोगों को इसके जरिया मसाइल बताता हूँ। मैंने देखा खानकाह में पीर साहब भी कुरान पढ़ रहे हैं और मुरीद भी बैठकर कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने कहा हुजूर आप भी कुरान, मुरीद भी कुरान? कहा हाँ मौलाना, लोग खानकाह में गंदा दिल लेकर आते हैं और हमारी जिम्मेदारी है दिलों को साफ कर देना, और दिलों को साफ करने का एक जरिया है इंसान कुरान की तिलावत करे तो दिलों के गुनाह भर जाएंगे, दिलों की गंदगी दूर हो जाएगी, ये दिल साफ हो जाएगा। अल्लाह अकबर, कुरान एक है मगर पढ़ने वाले अनेक हैं, मकसद सबका अलग अलग है। मैंने देखा साहब एक इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, गुस्ल करता है, पावज़ू होता है, साहब अच्छा कपड़ा पहनता है, जानेमाज़ बिछाता है, कुरान उठाता है, चूम रहा है, लेकर कुरान बैठता है। मैंने कहा खैरियत है साहब, आपको तो कुरान पढ़ना नहीं आता मगर आप कुरान लेकर क्यों बैठे हैं? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं सब पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं, कोई ऐसी किताब ले आइए जिससे अनपढ़ जाहिल फायदा उठा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया आप किसी को दीजिए, अगर पढ़ना नहीं जानता इंग्लिश उस पे खाना खा लेगा मगर एक लफ्ज पढ़ नहीं पाएगा। दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर दे दीजिए, अगर हिंदी उसे नहीं आती है वो उस पे खाना तो खा लेगा मगर एक खबर नहीं पढ़ पाएगा। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा ए मेरी कौम का नौजवान सुन, वो जाहिल इंसान कहता है मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, उर्दू की, ये सब पढ़े लिखे लोगों के लिए है। इंग्लिश जानता हो तो इंग्लिश की किताब से फायदा, उर्दू का जानकार उर्दू की किताब से फायदा, हिंदी का जानकार हिंदी की किताब से फायदा। मगर मौलाना ये कुरान है, कुरान पढ़ा लिखा पढ़ ले तो हाफिज़े कुरान बन जाता है, और जाहिल को पढ़ना नहीं आता मोहब्बत से सुन ले तो जन्नतुल फिरदौस में चला जाता है। हज़रात मेरे कहने का मकसद एक है साहब, दुनिया में कोई ऐसी किताब ले आइए जो जाहिल को भी फायदा पहुंचा दे, आलिम को भी फायदा पहुंचा दे। हाँ हाँ, उसी किताब को कुरान कहते हैं। जाहिल शख्स है, पढ़ना नहीं आता, साहब हाफिज साहब से सुन रहा है, जन्नत की तैयारी कर रहा है, कुरान को चूम रहा है, जन्नत की तैयारी कर रहा है, मोहब्बत से कुरान को देख रहा है, जन्नत की तैयारी कर रहा है। मैंने देखा एक बेटा कब्रिस्तान में बाप की कब्र पे खड़े होकर कुरान पढ़ रहा है। मैंने कहा साहबजादे खैरियत, आप कब्रिस्तान में कुरान पढ़ रहे हैं? कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सब हिंदुस्तान में काम आती है, वो सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है। जिंदा है तो इंग्लिश से फायदा, जिंदा है तो उर्दू से फायदा, जिंदा है तो अरबी, जिंदा है तो फारसी से फायदा, जिंदा है मौलाना वो तो मैथमेटिक्स से फायदा। लेकिन जब मौत आ गई तो इंग्लिश से फायदा नहीं होता, हिंदी से फायदा नहीं होता, टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई फायदा नहीं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर का कोई फायदा नहीं। मैंने कहा मतलब कहा मौलाना दुनिया में जितनी किताबें हैं वो सब सिर्फ जिंदा लोगों के लिए है, मगर ये कुरान है जिंदा पढ़े तो हिंदुस्तान में कामयाब और
कब्रिस्तान में कामयाब। किताब एक है, जिंदों को भी कामयाब कर रहा है और कब्रिस्तान में मुर्दों को भी कामयाब कर रहा है। उस किताब का क्या नाम है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए क्या नाम है? और जोर से बोलिए क्या नाम है? और वो कुरान किसके घर में है? आप सबके घर में है। अब बताइए, इतनी तमहीद के बाद तो आपने समझ लिया होगा कि इतनी इस कदर बेमिसलो बेमिसाल किताब आपके घर में है, फिर भी कामयाबी हमारे घर में नहीं, कामरानी हमारे घर में नहीं है। आज हमारी माँ बहन बहू बेटियां भी बैठी हैं और नौजवान बच्चे बूढ़े सब बैठे हैं और सबके हाथ में मेरी तरह बहुत लंबा चौड़ा है ना भाई? अरे बोलिए है कि नहीं है ना? मेरा मोबाइल 5000 ही का है, सेकेंड हैंड, ठीक है? ये समझिएगा, ये मत समझिएगा बहुत हाई फाई है, मुजफ्फरपुरी साहब की तरह नहीं। मैं अर्ज कर रहा था इस वक्त हर घर में कुरान, हर घर में, अरे हाथ उठाकर बोल रहे हर घर में, हर घर में। मगर इस वक्त हर मुसलमान के घर में लोग डिप्रेशन में जी रहे हैं। बोलिए, बच्चों को नींद नहीं आती, बूढ़ा डिप्रेशन में, माँ डिप्रेशन में, बाप डिप्रेशन में, शैतान का हमला, इतनी परेशानी क्यों? आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? तो एक है जरूरत और एक है ख्वाहिश। जरूरत और ख्वाहिश में बड़ा फर्क है। जरूरत गरीबों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिश बादशाहों की भी पूरी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरबा फिर भी फिर भी दम निकले। ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। खैर मैं मौजू को तवील करना नहीं चाहता, बताना चाहता हूँ। ख्वाहिश, आज का इंसान ख्वाहिशात की दुनिया में गिरा है। लाल, काला और उजला कहाँ चल दिए थे? ये तीनों जा रहा है और अब मेरी तकरीर इन्हीं लोगों के लिए शुरू हो रही थी। अगर ये तीनों चला गया तो मेरा तो नजराना लेना भी उसूल नहीं है ना? बैठो बैठो बैठो, मैं तो तकरीर तुम्हीं लोगों के लिए लेकर आया। माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है, सब मुस्कुरा रहे हैं। यूं ही मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराना मेरे और आपके सरकार की सुन्नत है। और एक बात याद रखिए, कभी घर लटका हुआ चेहरा लेकर मत जाइएगा, चाहे कितना ही टेंशन हो। घर लटका हुआ चेहरा लेकर, सैयदा दाई हलीमा का नाम आपने सुना है, बहुत टेंशन में थी, बड़ी परेशान थी। जितने अमीर बच्चे थे सब दाया लेकर मक्के से चली गई, बहुत टेंशन में थी। कलीम दानिश साहब किताब पढ़कर जानते हो कितने टेंशन में थे। सीने में दूध नहीं था, बेटे को रात भर नींद नहीं आती थी, ऊँटनी बड़ी कमजोर थी, शौहर भी परेशान थे। सोचा चलो आका से मिल लेते। कहती है बड़ी परेशान थी, लेकिन जब आका के करीब गई तो आका झूले में थे और आका ने सैयदा दाई हलीमा को देखा तो क्या किया? मुस्कुरा दिया। अरे बोले सुभान अल्लाह। क्या किया? पहला काम। और आला हजरत लिखते हैं, गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है वो जाने मसीहा। कहती है सैयदा जब नबी ने मुस्कुरा दिया तो मेरी जिंदगी से सारी परेशानियां दूर हो गई। आका गोद में आए मैं खुशहाल हो गई, आका ऊँटनी पे बैठे ऊँटनी खुशहाल हो गई, आका ने घर में कदम रखा घर खुशहाल हो गया, आका ने कबीले में कदम रखा कबीला खुशहाल हो गया। अरे यार, आका हमारी कब्र में आएंगे, हमारी कब्र नूर हो जाएगी। आका है, इसलिए याद रखिएगा, किसी को देखकर मुस्कुराना ये हमारे और आपके नबी की। अच्छा साहब, अल्लामा कलीमुद्दीन शमसी साहब बैठे, कभी आप इनसे मिले तो कभी ऐसा हुआ कि चेहरा गमगीन हो? अरे बोलिए, लबों पे पान भी है और मुस्कुराहट है। क्यों? कभी भी जाएं तो आका की सुन्नत को लबों पे सजाए रहे। आप कहेंगे मौलाना
टेंशन बहुत है, बिजनेस का टेंशन, बीमारी का टेंशन, बीवी का टेंशन, माँ का टेंशन, बच्चों का टेंशन। मैंने कहा 1 करोड़ टेंशन, मगर एकदम सरकार की सुन्नत पे अमल कीजिए, दिन भर बिजनेस कीजिए। बड़ा टेंशन है, जब शाम को दुकान बंद कीजिए, बावजूद हो जाइए, लबों पे मुस्कुराहट सजाइए, जेब में कुछ हो तो तोहफा ले लीजिए और दरवाजे पे सलाम करते हुए मुस्कुराते हुए दाखिल हो जाइए, ताकि हमारा बूढ़ा बाप हमें देखकर मुस्कुराने लगे, हमारी बूढ़ी माँ हमें देखकर मुस्कुराने लगे, हमारी बीवियां और हमारे बच्चे हमें देखकर मुस्कुराने लगे। जब हम गमगीन चेहरा लेकर जाते हैं ना, बीवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मुरझा जाता है, माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा भी मुरझा जाता है। बूढ़ा बाप अपने दिल की बात हमसे नहीं कह पाता। अरे यार, जमाने से क्या कहना, करोड़ों गम सीने में दाखिल करके खुद को जलाओ, लबों पे मुस्कुराहट लाते हुए घर के अंदर जाओ, ताकि हमारी वजह से हमारे बच्चे मुस्कुराते रहे, हमारी बीवियां मुस्कुराती रहे, हमारे माँ और बाप मुस्कुराते रहे, हमारा खानदान और रिश्तेदार मुस्कुराता रहे। मस्जिद में जाए तो इमाम मुस्कुराने लगे, मदरसे में जाए तो तालिबे इल्म मुस्कुराने लगे, रिश्तेदार के यहाँ जाए तो रिश्तेदार मुस्कुराने लगे। जब किसी से बात हो, कोई पूछे कैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपने नहीं देखा कि आका के पास ज़ाहिरी तौर पे कुछ नहीं होता, मांगने वाला आ जाता, आका मुस्कुराते, कहते बैठ जाओ, अली देखो तो फला के यहाँ से कर्ज लेकर आओ और इनकी जरूरत पूरी कर दो। कर्ज ले लिया और उसकी जिंदगी में खुशी को दाखिल कर दिया। अब सुल्तान रज़ा आपको बताना चाहता है, सब सारे गम सीने में, मगर सबको खुशी बांटो। जब सारी दुनिया सो जाए, बीवी भी सो गई, बच्चे भी सो गए, माँ बाप भी सो गए, तन्हाई में उठो, बावजू हो जाओ, मुसल्ला बिछाओ और खुदा की बारगाह में रो और गिड़गिड़ाओ, मालिक को मौला, मेरी बीवी नहीं जानती, मेरे बच्चे नहीं जानते, मेरी माँ को पता नहीं, मौला मगर तू दिलों के राज को जानने वाला है, तू मेरे हालात को जानने वाला है। मौला बिजनेस की पोजीशन सही नहीं है, मेरे हालात अच्छे नहीं है, मौला लेकिन तू चाहे तो मेरे हालात बेहतर हो जाए, मौला तू करम कर दे तो मेरे हालात अच्छे हो जाए, या मौला मेरे लिए नहीं, इतने हालात बेहतर कर दे ताकि मैं अपनी माँ को हमेशा मुस्कुराता हुआ रखूं, अपने बीवी बच्चों की जिंदगी में खुशहाली लाता हुआ रहूं। कसम खुदा की, जिस दिन हमने अपनी अर्जी खुदा की बारगाह में लगानी शुरू कर दी, साहब करोड़ों गम सीने में होंगे, खुदा करोड़ों गम को मिटा देगा, हमारी दुनिया भी हसीन हो जाएगी और आखिरत भी हसीन हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, मदरसा मदीनतुल उलूम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर साहब हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ थोड़ी सी परेशानी आई, बीवी को जाकर झाड़ दिया, माँ को जाकर डांट दिया, बीवी बच्चों को बोल दिया, मौलाना साहब मिले, जाइए जाइए अभी मूड ठीक नहीं है। साहब अजीब इत्तेफाक, ना ना ना, जहाँ रहिए इस्माइली चेहरा रखिए। मेरी इंग्लिश कमजोर है, आप लोगों की मजबूत है ना। इस्माइली चेहरा समझते हैं ना, यानी चेहरे पे इस्माइल रखिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा सरकार को भी पसंद है और हमें भी, इसलिए जहां रहिए गम में भी मुस्कुराते हैं वो फूल की तरह, दामन रसूले पाक का जो छोड़ते नहीं, दामन रसूले पाक का जो छोड़ते नहीं। आज जानते हैं सबसे बड़ी टेंशन की वजह ये मोबाइल है, मोबाइल। अब जरा गौर से पहले मेरी बात सुनिएगा। आज हम लोग, आज हमारे बच्चे इंटर में अच्छा नंबर नहीं ला रहे हैं, उसकी वजह है ना, एक लफ्ज में आपको बोलते चल रहा, उसकी वजह। आज बच्चों की पढ़ने में तबीयत नहीं लगती, इसकी वजह। बीवी शौहर से चिड़चिड़ा हो जाती है, वजह। बच्चे माँ बाप से नाराज हो जा रहे हैं, वजह। बीवी शौहर में झगड़ा हो जा रहा है, वजह। बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, वजह। स्टेज पे भी लफड़ा हो जा रहा है, वजह। अजीब
इत्तेफाक है मियाँ, है ना। क्या कहूँ इस मोबाइल को, जानते हैं उसकी वजह क्या है? जरूरत और ख्वाहिश। याद रखिएगा, जरूरत 2 रोटी की है, 3 खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा। जरूरत 2 रोटी की है, 4 खाइएगा बीमार पड़ जाइएगा। जरूरत 1 गिलास पानी का है, 4 गिलास पीजिएगा बीमार पड़ जाइएगा। ठीक यही हाल मोबाइल को हमने जरूरत के लिए इस्तेमाल करना छोड़ दिया, मोबाइल को हमने ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। मोबाइल की जरूरत है, फोन कर लिया जाए, किसी की खबरों खैरियत ले ली जाए, बिना जरूरत किसी को टच न किया जाए, मैसेज कर लिया जाए, ईमेल के जरिए अपना मैसेज बैंक वगैरह से मंगा लिया जाए, साहब इस पे फोन पे के जरिए लोगों को पैसा लेन देन कर लिया जाए, जरूरत के मुताबिक किताबें लोड कर ली जाए, जरूरत के मुताबिक ऑनलाइन क्लास जरूरी है तो जितने घंटे का है ऑनलाइन क्लास कर लिया जाए। लेकिन मोबाइल इसलिए नहीं है कि रात भर बैठकर मूवीज और फिल्में देखी जाए, मोबाइल इसलिए नहीं है बैठकर उस पर नौजवान अपने दिमाग को लगा करके गेम खेलते रहे, इसलिए कि गेम खेलना जरूरत नहीं ख्वाहिशात है, सीरियल देखना जरूरत नहीं ख्वाहिशात है, बैठकर 3 घंटा उसमें मूवीज और फिल्में देखना जरूरत नहीं ख्वाहिशात है, IPL में सट्टा लगाना जरूरत नहीं ख्वाहिशात है। जब से हमने मोबाइल को जरूरत के लिए नहीं ख्वाहिशात के लिए इस्तेमाल किया, बच्चे डिप्रेशन में चले गए, औरतें डिप्रेशन में चली गई, हम कुरान की तिलावत से दूर हुए, नमाज की बरकतों से दूर हुए, घर में मोहब्बत से दूर हुए। नतीजा क्या निकला? वो लड़कियां जिन्होंने किताब को छोड़कर मोबाइल को जिंदगी का साथी बनाया, इंस्टाग्राम पे आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई, फेसबुक पे आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई, व्हाट्सएप पे आवारा लड़कों से दोस्ती हो गई। मैं एक दिन ताज्जुब में पड़ गया, अपने क्लासरूम से पढ़ा करके निकला, देखा साहब हमारी कौम की जवान बेटी नकाब पहनी है, पीठ पर बैग है, हाथ में लंबा सा मल्टीमीडिया मोबाइल सेट है, कॉलेज से बाहर बात करते जा रही है। मैं सोच रहा था ये बाप से बात नहीं कर रही है, ये भाई से बात नहीं कर रही है, ये जरूर किसकी कोई इसका आवारा बॉयफ्रेंड होगा जिससे ये बात कर रही है। नतीजा क्या निकला? इस आवारा बॉयफ्रेंड ने साहब इसे बहलाया, फुसलाया, मोबाइल के जरिए ये मिसयूज हुई, साहब टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली के गटर में डाल दी गई, टुकड़े टुकड़े करके इन आवारा लड़कों ने कॉलेज के पीछे इनकी इज्जतें लूट ली। साहब एक बहला कर ले गया, 4 ने इज्जतें लूट कर टुकड़े टुकड़े करके डाल दिया। आखिर इसकी वजह क्या रही? मोबाइल की जरूरत नहीं थी, मगर बिना जरूरत इसने मोबाइल को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। साहब यूट्यूब की जरूरत नहीं थी, मगर बिना जरूरत इसने अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। साहब फेसबुक की जरूरत नहीं थी, मगर बिना जरूरत इसने फेसबुक को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया। कुरान ने क्या कहा? नहन नफ्सा अनिल हवा फइन्नल जन्नता हियल मावा, जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, जन्नत की बहारें उसी के लिए है, और जिसने ख्वाहिशात की पैरवी की, बर्बादी उसके लिए है, तबाही उसके लिए है, इज्जत और आबरू की नीलामी इसके लिए है। ऐ मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, आज कान खोलकर सुन लो, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, इंटर का इम्तिहान खत्म हो गया, मैट्रिक का इम्तिहान कल से शुरू होने वाला है। कितने नौजवान मोहल्ले के हैं जिन्होंने मैट्रिक के इम्तिहान की कामयाबी के लिए ग्रुप मोबाइल पे बनाया हो? कितने नौजवान हैं जिन्होंने इंटर में कामयाबी के लिए, साहब इम्तिहान में कामयाबी के लिए आपस में ग्रुप बनाया हो? नहीं, तेरा तो पबजी गेम खेलने वाला ग्रुप है, आवारा भेड़िए की तरह पक 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 मोबाइल को लेकर के किए रहता है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, नतीजा क्या निकला? तेरा बाप चाहता है तू पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, मगर मोबाइल ने तुझे बनने नहीं दिया। तेरी माँ चाहती है तू पढ़ लिख कर IPS अफसर बने, मगर मोबाइल ने तुझे बनने नहीं दिया। ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, हम और तुम जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी का साथी जमीन पर जो बनकर आया वो इंसान नहीं, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। रब फरमाता है तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी आसमान से जो जमीन पर बनकर आया वो इंसान नहीं, कुरान बनकर आया है, किताब बनकर के आया है। मेरी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियों, तुम भी चाहते हो कि तेरी जिंदगी हर मोड़ पे कामयाब हो जाए, तो मोबाइल की गुलामी से अपने आप को आजाद करो और किताब
को अपनी जिंदगी का साथी बना लो, हर लम्हा किताब तेरा साथी रहे। जिस दिन हमारी कौम के नौजवान लड़के लड़कियों ने मोबाइल को के बजाय किताब को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया, मैट्रिक में अच्छा नंबर तेरा आएगा, इंटर में अच्छी कामयाबी तुझे मिलेगी, यूपीएससी और बीपीएससी क्वालिफाई तू करेगा, समाज का अच्छा डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर तू बनेगा, समाज का अच्छा आलिम हाफिज कारी तू बनेगा। मगर अगर हम मोबाइल के घिरौने में यूं ही बहते रहे, वो जमाना दूर नहीं जब हर इंसान कहेगा मौलाना मेरा दिमाग मोबाइल ने हैंग कर दिया। तो बताएं कितने नौजवान हैं जो आज के बाद किताब को अपना साथी बनाएंगे? सिर्फ नौजवान। आप मेरी तकरीर नहीं समझे? समझे कितने नौजवान हैं जो आज के बाद मोबाइल नहीं किताब को अपनी जिंदगी का साथी बनाएंगे? सिर्फ नौजवान बच्चे हाथ उठाए, माशाअल्लाह। पीछे से छोटे छोटे बच्चे उठा रहे हैं, जरूर उठाएं। और माँ बहनों से भी कहूंगा आप लोग भी तमाशा कम कीजिए। बच्चा रोता है तो फट से मोबाइल दे देती है, बच्चा थोड़ा सा नाराज हुआ फट से मोबाइल दे देती है। अरे शर्म करो, बच्चों को कुछ अच्छे कलिमात सिखाओ, बच्चों को कुछ खिलौने से खिला दो, बच्चों को कुछ दूसरी चीजें दे दो। ये मोबाइल नहीं जहर है, ये मोबाइल नहीं कैंसर है, ये मोबाइल नहीं आत्महत्या है। याद रखना, तू अपने बच्चे को मोबाइल की आदत डालकर तू उसकी जिंदगी को तबाह कर रही है, तू उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। आज मोबाइल ने न जाने कितनों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। आज यही वजह है, आज हमारी कौम के नौजवान लड़के और लड़कियां नारा लगाते हैं मौलाना माई लाइफ माई चॉइस। इंग्लिश अच्छी है मेरी? माई लाइफ माई चॉइस। मौलाना ये सब तकलीफ में मत सिखाइए। अरे मेरी भी तो कोई इच्छा शक्ति है, मैं भी तो कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा मतलब? अरे मौलाना थोड़ा इंजॉय के साथ जीने दीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई इंजॉय किसे कहते हैं? ये इंजॉय क्या है? कहा मौलाना साहब नहीं जानते इंजॉय क्या, बता दीजिए। कहा मौलाना हम अपनी मर्जी से खुशी 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 जीना चाहते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, इंजॉय कीजिए, लेकिन क्या जरूरी है, कैसे इंजॉय करना चाहते हैं? तब मुझे बात समझ में आई। मैं क्लास से निकला और घर जा रहा था, देखा रास्ते में पुलिया पर 10 नौजवान बाइक खड़ी करके केक काट रहे हैं, गाना गा रहे हैं, है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे हैं, एक दूसरे के गाल में केक लगा रहे हैं, बड़े खुश हैं, गाली भी दे रहे हैं, गाना भी गा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ला हौल वला कुव्वत ये क्या कर रहे हो? कहा हजरत क्या बर्थडे मनाना नाजायज है? मैंने कहा नाजायज तरीके से मनाना नाजायज है और जायज तरीके से मनाना जायज है। आप नहीं आए, आप नहीं आए, आप वहीं पे बैठे दुआ करें अल्लाह ताला सबको हिदायत नसीब फरमाए। मैं अर्ज कर रहा था, मैंने कहा मेरी कौम का नौजवान ये तू जिनके साथ गाना गा रहा है कौन है? कहा मेरे मोहल्ले के मेरे साथी है। मैंने कहा जिनके गाल में तू केक लगा रहा है ये कौन है? कहा ये मेरे मोहल्ले के साथी है। जिनके साथ तू गाली गलौज कर रहा है ये कौन है? कहा मेरे मोहल्ले के साथी है। मैंने कहा फिर ये तू क्या कर मौलाना इंजॉय कर रहे हैं? आज मेरी बर्थडे का दिन है। मैंने कहा रे पगला इंजॉय अगर खुशी को कहते हैं तो तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी का हकदार अगर कोई है तो सबसे पहले तुम्हारी माँ है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी औलादे हैं, तुम्हारे भाई बहन है, फिर दोस्त अहबाब ने नहीं पाक रवा है। ऐ मेरी कौम का नौजवान, तू गाना गाकर अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा है, तू गुनाह करके अपनी बर्थडे पार्टी मना रहा है, अपनी पैदाइश का दिन गुनाह कर रहा है। अरे सुन सुन, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जा, ये दोस्त, ये आवारा दोस्तों की दोस्ती तुझे जहन्नम की दहलीज तक पहुंचा देगी। ये आवारा दोस्तों की दोस्ती एक दिन तेरी जान ले लेगी। ये आवारा दोस्तों की दोस्ती एक दिन तुझे शराबी और जुआरी बना देगी। इसलिए कि तू भी चाहता है माई लाइफ माई चॉइस और तेरे दोस्त भी चाहते हैं माई लाइफ माई चॉइस। मगर सुन, आज के जलसे से पैगाम लेकर के जा, कभी अपनी आज के बाद जब तेरी बर्थडे पार्टी आए ना तो अपनी हैसियत के मुताबिक सबसे पहले अपनी प्यारी माँ के लिए तोहफा खरीदना, अपने बाप के लिए कुछ तोहफा लेना, कुछ साहब
मिठाइयों का इंतजाम करना, घर जाना और सबसे पहले अपनी माँ के कदमों में जाना, माँ को सलाम करना, अम्मा ये तोहफा आपके लिए है, कबूल कर लीजिए, ये तोहफा कैसा लगा? अरे माँ को तू 1 रुपए का भी सामान देगा ना, माँ चेहरे से मुस्कुरा देगी, बाप का कलेजा फख्र से चौड़ा हो जाएगा, मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने दिया है, मेरा बेटा मुझसे बेपनाह प्यार करता है। माँ मुस्कुराएगी, कहेगी बेटा क्या बात है, आज तू मुझे गिफ्ट दे रहा है, आज तू मुझे तोहफा दे रहा है। अल्लाहु अकबर। साहब चूं ही कहेगा, बेटा कहेगा माँ याद कीजिए आप भूल गई है, आज ही के दिन मैं आपकी गोद में जन्म लिया था, आपने सबसे पहले मुझे प्यार किया था, माँ सबसे पहले मेरे मुंह में तूने दूध का निवाला डाला था, अब्बा ने सबसे पहले मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया था, मेरी लंबी उम्र की तूने दुआएं मांगी थी। ए मेरी माँ, मैंने सुना है इमाम साहब जुमा में तकरीर कर रहे थे कि के किसी की दुआ औलाद के हक में कबूल हो ना हो, मगर माँ बाप की दुआएं औलाद के हक में जरूर कबूल होती है। ए मेरी माँ, आज मेरी पैदाइश का दिन है, मैं चाहता हूँ तू मेरे लिए दुआ कर दे ताकि मेरी दुनिया भी हसीन हो जाए, आखिरत भी हसीन हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत